Good morning, everyone. In the previous class, we had done two illustrations related to conversion method. And for the third one, full-fledged question, we had written the question. I hope you must have written the question. Have you? Yes. And have you prepared the formats? Yes, sir. Okay, then let's start attempting it. Read the question. Deepti Enterprises does not maintain proper books of accounts. All receipts and payments were through bank unless specified otherwise. Following information is available. Okay, what is the first information given? Stock. Stock. Opening stock and closing stock both are given. Where will opening stock come? The balance sheet of 31st March 2019. Absolutely. Very good. And also in Trading account. trading account debit side, two opening stock 60,000. Remember, yesterday I had asked you to write a note that when you are preparing trading profit loss balance sheet also, then in such questions, each amount will go at two places. Yes, sir. So in this question, each amount will going two places because we are maintaining trading account, profit loss account, and balance sheets also. In case of incomplete records. Written. Yes, sir. What is the next amount? Closing stock. स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, ये बताओ अब कहां पर आएगा? Trading account credit side and balance sheet of 2020. वेरी गुड. क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक 55,000 and in trading account by closing stock 55,000. So can we write closing stock in the first line of trading account? No, you should not. ऊपर आप सेकंड लास्ट लाइन में लिख लो इसे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज ऊपर सेल्स के लिए जगह, फर्स्ट आइटम ऑन क्रेडिट साइड शुड बी सेल्स एंड फर्स्ट आइटम ऑन डेबिट साइड शुड बी ओपनिंग स्टॉक देन परचेजेस. Yes, sir. So it's better not to write, although you can, but it's better not to. Sir, written. Next we are given Creditors. क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? Opening balance sheet liabilities. ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज. एंड सेकंड टोटल क्रेडिटर्स का Closing अकाउंट. balance sheet liabilities. नहीं, टोटल क्रेडिटर्स का अकाउंट भी हमने बनाया ना, तो उसमें आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000. Return. Yes, sir. Closing balance of creditors. Closing balance sheet and creditors account.
balance carried down. वेरी गुड. क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 80,000 और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड सेकंड लास्ट लाइन टू बैलेंस कैरिड डाउन 80,000. Written. Next we are given Debtors 80,000. opening balance. Where will it come? Opening balance sheet, assets and debtors account debit side. Very good. Opening balance sheet assets, debtors 80,000 and total debtors account debit side to balance brought down 80,000. Written. Closing balance of debtors, where will this come? Closing balance sheet and debtors account credit side balance carried down. Very good. लिख लो. Closing balance sheet में assets में debtors 78,000 and in total debtors account second last line by balance carried down 78,000. Written. Next we are given Furniture. opening balance of furniture. Where will this come? Opening balance sheet assets. Yes. Furniture 70,000. And what about the second effect? It will come in closing balance sheet also, but in inner column. क्योंकि जो एसेट पिछले साल थे वो इस साल भी होंगे जब तक हमें और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन और कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी तो उससे हमें एडजस्टमेंट पता चलेगी. तो फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट कॉलम में 70,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में 70,000 लिख लो. Written. Closing balance of furniture is given 75,000. Now what does this mean? 70,000 तो पिछले साल था 70,000 year ending, previous year ending. Now it is 75,000. What does this mean? So maybe that we have purchased furniture of 5,000. Yes, absolutely. इसका मतलब 5,000 का फर्नीचर हमने खरीदा है, तो फर्नीचर के नीचे लिख दो परचेज्ड प्लस 5,000 और टोटल अमाउंट कॉलम में लिख दो 75,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में. और ये खरीदा है तो इसका मतलब इसकी पेमेंट हुई, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे बाय फर्नीचर अकाउंट 5,000 इन बैंक कॉलम. Written. Next we are given Credit sales 50,000. where will these come? The trading account credit side and debtors account. Very good. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय सेल्स और क्रेडिट लिख के 50,000 एंड सेकेंड इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में टोटल डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट 50,000. Written. Next we are given Payment to creditors 70,000. where will this come? In creditors account and in cash book. Very good. क्रेडिटर्स अकाउंट में किस साइड पर? Debit side. और कैश बुक में?
क्रेडिट साइड। कैश बुक में बाय क्रेडिटर्स अमाउंट, ये गलत आ गया है यहाँ पे पर्टिकुलर्स में, इसे अमाउंट कॉलम में लिखना बैंक में 70,000 और टोटल क्रेडिटर्स में डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 70,000। Written. इसको ठीक कर देता हूँ 70,000 को। Okay, next we are given Salaries paid 80,000. Where will these come? Profit and loss account debit side and cash book Very credit good. side. Profit loss में डेबिट साइड टू सैलरीज 80,000 और कैश बुक में बाय सैलरीज अकाउंट 80,000। डेट हमें कोई दी नहीं हुई, इसलिए कैश बुक में डेट कॉलम में लिख लेना 2019-20, मतलब ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शंस हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गिवन रेंट पेड। रेंट पेड विल, where will this come? Profit and loss account and cash book. Right. Profit and loss account में लिख लो टू रेंट 54,000 and cash book by rent account 54,000. क्वेश्चन में ऊपर ही हमें दिया हुआ था ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स वर थ्रू बैंक अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, इसलिए हम ये सारा बैंक कॉलम में लिख रहे हैं। Written. The next item given is Stationery expense in cash 10,000. yes, अब मेंशन हो गया इन कैश। Where will it come? Profit and loss account debit side and cash book credit side cash column. Right. Profit loss में debit side to stationery expense 10,000 and cash book credit side by stationery expense account, but this time in cash column 10,000. Written. Next is Discount allowed 6,000. yes, where? Profit and loss account debit side Very good. To discount allowed and 1,000 and debtors account. very good. Debtors को देंगे हम डिस्काउंट, debtors में credit side by discount allowed account 6,000. Written. Next one is opposite of discount allowed, that is discount received. Where will it come?
Profit and loss account, credit side, and creditors account. Yes, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 5000 एंड क्रेडिटर्स में किस साइड? Debit side. डेबिट साइड. एक्सीलेंट. टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5000. Written. Next is Returns inward 10,000. where should this come? Trading account, credit side, sales minus, Okay. and in debtors account on credit side. राइट. सेल्स में क्रेडिट सेल लिखी हुई है, कैश के लिए एक लाइन छोड़ दो. ठीक है, क्रेडिट के बाद उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो रिटर्न्स माइनस 10,000. और डेटर्स अकाउंट में बाय रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट 10,000. Written. Next we are given 9th point. Further capital introduced 22,500. Where? Sir, in balance sheet. Opening or closing? Opening balance sheet. ओपनिंग कौन सी है? प्रीवियस ईयर के एंड की, और ये हमें ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर. तो इसका मतलब ड्यूरिंग द करंट ईयर इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी. ठीक है. कैपिटल के लिए जगह छोड़ दो, एक लाइन छोड़ दो, और उसके नीचे लिखो फर्दर प्लस 22,500. और इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा? Cash account. कैश बुक. यस. डेबिट साइड टू कैपिटल अकाउंट बैंक कॉलम 22,500. Written. Next we are given Drawings 2,500. So Subtract from the capital of closing balance sheet. वेरी गुड. जहां फर्दर कैपिटल लिखा था उसके नीचे ड्रॉइंग्स माइनस 2,500 एंड सेकेंड इफेक्ट In cash book on credit side. एब्सोल्युटली राइट. बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कैश बुक में बैंक कॉलम 2,500. Written. Next is Advertisement expense 14,000. Profit and loss account and cash book. वेरी गुड. प्रॉफिट लॉस में टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 14,000 and in cash book credit side by advertisement expense account bank column 14,000. Written. Next we are given online sales were 90% of total sales. ठीक है. टोटल सेल्स कौन सी होंगी? क्रेडिट प्लस कैश, है ना. तो अगर ऑनलाइन सेल्स का अमाउंट कहां पे आएगा? बैंक में. ठीक है. तो वो टोटल सेल्स का 90% थी. इसका मतलब
क्रेडिट सेल कितना है टोटल सेल का? 10%. 10% है. वेरी गुड. आई रिपीट, अगर ऑनलाइन सेल्स यानी जो बैंक के थ्रू अमाउंट मिला है, जिसे हम वैसे कैश सेल भी कह सकते हैं, देवर 90% ऑफ टोटल सेल्स, इसका मतलब रिमेनिंग 10% वर क्रेडिट. और क्रेडिट सेल हमें दी हुई है 50,000. 50,000 अगर 10% है तो टोटल सेल कितनी होगी? 5 lakh. और उसका 90% कितना होगा? 4,50,000 माइनस कर देंगे. एक्सीलेंट. तो ये हमारे पास आ गया ऑनलाइन सेल्स का अमाउंट. ठीक है, इसे हम यहां पे सेल्स में क्रेडिट के नीचे लिख देंगे ऑनलाइन प्लस 4,50,000. ठीक है, और सेल्स का नेट अमाउंट आ गया अमाउंट कॉलम में 4,90,000. एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, कैश बुक में टू सेल्स अकाउंट, बैंक कॉलम में 4,50,000. Sir, written. Next we are given Online purchases 85,000. online purchases 85,000. Where will this come? Trading account debit side and cash book. Right. ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखो टू परचेजेस, उसके नीचे लिखो ऑनलाइन प्लस 85,000. एक लाइन छोड़कर क्रेडिट वाली हम वहां पे लिख देंगे, या आप ऑनलाइन वाला परचेजेस के नीचे लिख लो, क्रेडिट वाला परचेज करके लिख देना, प्लस करके लिख देना उसके नीचे. सो डेबिट साइड टू परचेजेस ऑनलाइन, इनर कॉलम 85,000. एंड सेकेंड इफेक्ट, कैश बुक में बाय परचेजेस अकाउंट, बैंक कॉलम 85,000. Sir, written. Next we are given returns outward. Where will this come? Subtract from the purchases of trading account and creditors account. Excellent. परचेजेस में से लेस हो जाएगा, रिटर्न्स -8,000. ठीक है, और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका क्रेडिटर्स अकाउंट में टू रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट 8,000. Sir, written. Next we are given bad debts. Profit and loss account debit side and debtors account. Absolutely right. Profit and loss account में डेबिट साइड टू बैड डेट्स 1,500, और डेटर्स अकाउंट में बाय बैड डेट्स अकाउंट 1,500. Sir, written. Next, check received dishonored. Debtors account and cash book. राइट. डेटर्स अकाउंट में किस साइड पर? Debit side. डेबिट साइड पे, और कैश बुक में क्रेडिट साइड पे. डेटर्स में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 7,000 चेक्स डिसऑनर्ड, और कैश बुक में लिखेंगे बाय डेटर्स 7,000 बैंक कॉलम में. जर्नल एंट्री इसकी होगी डेटर्स, टोटल डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. रिटर्न. Yes, sir.
अब एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, लेट्स रीड दिस. ऑन 31st March 2019 मींस previous year ending. Opening balance. Bank balance was rupees 2,72,000. Where will this be shown? In the opening balance sheet. Opening balance sheet. Asset side, we will show cash. Cash का भी दिया हुआ ना, cash balance was 18,000. तो cash 18,000, bank 2,72,000. And second effect, कैश बुक में डेबिट साइड पे फर्स्ट लाइन में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 एंड 2,72,000. ये फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़नी थी कैश बुक में. अगर नहीं छोड़ी थी तो उसमें लिख लो, नहीं छोड़ी तो कोई बात नहीं, अब नीचे लिख लो. सेल्स के बाद टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 2,72,000. ये मैं बताना भूल गया शुरू में कि एक लाइन छोड़नी थी इसके लिए. Written. Then a machinery was purchased on 1st August for rupees 24,000 on which depreciation at 5% per annum is to be charged. तो ये जो मशीन हमने परचेज की ये कहां पर आएगी? Balance sheet. Which opening one? balance sheet. Opening or closing? Sir, opening. नहीं, क्लोजिंग, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है ड्यूरिंग द ईयर. अगस्त में खरीदी है, ठीक है. तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट तो 31st मार्च 2019 की है. हम बात कर रहे हैं ईयर 2019-20 की, मींस अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक का. उसके बीच में जो अगस्त आएगा तब खरीदी है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट आएगा सीधे. मशीनरी इनर कॉलम 24,000 और खरीदी है तो पेमेंट हुई होगी. तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पर बाय मशीनरी अकाउंट बैंक कॉलम 24,000. नाउ डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम, ठीक है. 5% पर एनम. 24,000 का 5% कितना हुआ? 10% कितना हुआ 24,000 का? 2,400. उसका हाफ हो जाएगा 5%, दैट इज 1,200, है ना. बट दैट विल बी फॉर द होल ईयर पर एनम. हमें कब से कब तक चार्ज करनी है? 1 अगस्त को खरीदी है, तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक, ठीक है. इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स छोड़ दो, 8 मंथ्स की हमें कैलकुलेट करनी है. 1,200 इंटू 8/12 करो कितना आया, या 2/3. 8/12 2/3 हो गया. 800. Depreciation is 800. Yes, depreciation is 800. So depreciation minus 800 मशीनरी के नीचे, और नेट अमाउंट आ गया 23,200 मशीनरी का. और डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट वेयर विल बी शो? Profit and loss account debit side. राइट. टू डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन मशीनरी 800. Then further the question says a loan of rupees 36,000 was taken on 1st December. तो ये लोन कहां पर आएगा? Closing balance sheet liabilities. वेरी गुड. क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लोन 36,000 एंड सेकंड इफेक्ट लोन लिया है तो पैसे आए बिजनेस में. Cash book debit side. यस, कैश बुक डेबिट साइड. टू लोन अकाउंट बैंक कॉलम में 36,000.
written. On which interest at 20% per annum was paid on 31st March. 20% per annum, 36,000 का 10% कितना हुआ? 3600. उसका डबल होगा 20%, दैट इज 7,200. 7,200 हुआ पूरे साल का इंटरेस्ट. ठीक है, लोन लिया कब है? 1 दिसंबर. तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है? 4 months. 4 months. So 4/12 या 1/3 of 72,000. Sorry, 7,200. 2400. राइट. तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 2 इंटरेस्ट ऑन लोन 2,400 और यहां पे लिखा हुआ है वॉज पेड. तो इसका मतलब कैश बुक में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 2,400. अगर पेड की जगह आउटस्टैंडिंग दिया होता तो कैश बुक में ना आके लायबिलिटीज में ही आ जाता इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग. क्लोजिंग बैलेंस शीट में लोन के बाद इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 2,400 तब वहां पे आ जाता क्लोजिंग बैलेंस शीट में. क्लियर? Yes, sir. नाउ वी विल क्लोज दी अकाउंट्स वन बाय वन. सबसे पहले हम क्लोजिंग करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट की. टोटल आ रहा है इसका क्रेडिट साइड पर 5 लाख और डेबिट में सिर्फ एक अमाउंट है 72,000. दैट मींस द बैलेंसिंग अमाउंट इज 4,28,000. व्हाट विल बी दैट अमाउंट? किस चीज का अमाउंट होगा वो? Capital. Opening capital. Yes, that will be opening capital 4,28,000. अब ये कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जो निकली 4,28,000, इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर जाएगा? Closing balance sheet. यस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये कैपिटल का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा. जो हमने फर्दर लिखा था, फर्दर से ऊपर लाइन छोड़ी थी कैपिटल के लिए, वहां लिखेंगे कैपिटल 4,28,000 इनर कॉलम में. इसके बाद हम पहले डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट्स को क्लोज करेंगे. क्रेडिटर्स में डेबिट साइड टोटल आ रहा है 1,63,000 और क्रेडिट में सिर्फ एक अमाउंट है 72,000. सो बैलेंसिंग फिगर इज 91,000 और ये होगी हमारी क्रेडिट परचेज. सो बाय परचेजेस अकाउंट. और इसका सेकंड इफेक्ट Trading account debit side. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट परचेज की जगह हमने छोड़ी हुई थी, वहां पे अब लिख देंगे परचेज के नीचे क्रेडिट 91,000 और अब परचेज का नेट अमाउंट कैलकुलेट करके लिख देंगे 91 + 85 - 8 दैट इज 1,68,000 अमाउंट कॉलम में. Written. नाउ द टर्न ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट. इसका टोटल आ रहा है 1,37,000 डेबिट साइड का. क्रेडिट साइड इज शॉर्ट. बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है 41,500. ठीक है, ये होगा बाय बैंक अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन हमें दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड पे फिर मिसिंग इंफॉर्मेशन निकलती है बाय बैंक अकाउंट. और इसका सेकंड इफेक्ट Cash book. यस, कैश बुक में डेबिट साइड 2 टोटल डेटर्स या 2 डेटर्स बैंक कॉलम में 41,500. Written. अब नेक्स्ट हम क्लोजिंग करेंगे कैश बुक की. कैश का तो बड़ा सिंपल है, डेबिट साइड पे 18,000 है, क्रेडिट में सिर्फ 10 है तो बैलेंस कैरिड डाउन 8,000. ठीक है,
बैंक का डेबिट टोटल आ रहा है 8,22,000. Credit side is short. The balance carried down is coming 4,78,100. और फिर डेबिट साइड पे हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 एंड 4,78,100. ये जो बैलेंस बचा कैश और बैंक का, इसका सेकंड इफेक्ट अब कहां पर आएगा? Closing balance sheet assets. यस, वेरी गुड, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश और बैंक का. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर कैश 8,000 और बैंक 4,78,100. इसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग करेंगे. टोटल आ रहा है 5,45,000 और ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट 3,17,000. which gets transferred to profit and loss account credit side by gross profit 3,17,000. और डेबिट साइड पे कुछ नहीं आया तो वहां पे डैश डैश पर्टिकुलर्स और अमाउंट में. फिर हम करेंगे क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की. इसका टोटल आ रहा है 3,22,000 और नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,53,300. ये अमाउंट कॉलम में लिख लेना, फिर ये पर्टिकुलर्स में आ गया है, अमाउंट कॉलम में लिख लेना इसे. एंड दिस नेट प्रॉफिट विल गो वेयर? इट विल बी एडेड इन क्लोजिंग कैपिटल प्लस 1,53,300. कैपिटल का टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट आ गया 6,01,300 एंड द बैलेंस शीट टोटल 7,17,300. The question is complete. You will attempt remaining questions from the book. Any doubt, anyone? लिख लो, ये डिटेल्स जो रह गई हैं वो लिख लो जल्दी से.